Hello everyone. Today we are again discussing the question paper asked in GPA 2011. In the last video lecture, we have discussed question number 1 to 15 in detail. Today now we are going to discuss the next part. So in the last video lecture, we have discussed these whole 15 questions. I hope you get all questions very clearly, very efficient manner. Also, I have discussed one thing more about the question number 14. That is the mistake here in the GPIT. So it to be corrected. मैंने कहा था कि हम देखेंगे एक बार इसको डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो दे रखा था वो दे रखा था Q&S और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑप्शन ए इसमें करेक्ट दिया हुआ था. लेकिन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एस क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है. ऑटोइम्यून डिजीज कौन कौन सी हैं? रोमेटिक आर्थराइटिस है और माइस्थेनिया ग्रेविस है. तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए था क्यू एंड आर, और क्यू और आर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है. इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए था क्यू एंड आर, दे आर ऑटोइम्यून डिजीज, और क्यू एंड आर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है. आई होप यही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था. जो यहाँ मिस्टेक था तो मैंने कहा था हम एक बार डिस्कस कर लेंगे. तो मैं इसको ये क्लियर कर लें आप कि ऑटोइम्यून डिजीज रोमेटॉइड आर्थराइटिस है और माइस्थेनिया ग्रेविस है. नेक्स्ट आज हम जो हमारा जो टॉपिक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टुडेज क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 16 to 30 that we are going to discuss. So look at here the question number 16. What is the question number 16? The antiretroviral raltegravir, that is antiretrovirus viral drug, is unique because of which of the following action? Means the reticuloviral drug is used as a antiretroviral drug. As you know, what is the antiretroviral drug? Antiretroviral drug means drug which are used in treatment of the HIV, because HIV is the reverse transcriptase and RNA dependent DNA polymerase, you can say enzyme is there. So you can say retroviral drug, retrovirus you can say. So in the treatment of the HIV, the reticuloviir may be used in the treatment of the HIV. So what are the other drug also? There is like Judovodine, like Dudonosine. These are some few drugs that is used in treatment of HIV. But what are the specific thing here? The reticuloviir, that it is more superiorly it is used. Option A is integrase inhibitor. Option C is it is wrong. So option B is to be the B. Option B should be CCR as co-receptor antagonist, and option C or G is the fusion inhibitions, and option D is the reverse transcriptase inhibitor. So it is okay that reverse transcriptase inhibitors all written Judovodine, Dudonosine, or they have the reverse transcriptase inhibitor. But it is asking the what is the unique things, means other than the reverse transcriptase inhibitor, what are the specific things that is here into the reticuloviir. So important thing is that reticuloviir also inhibit option A, integrase inhibitions. So the correct option would be the integrase inhibitions. So what is the integrase? Integrase
integrase is the, you can say, for enzymes, that integrase enzyme that is secreted by HIV virus, and it is responsible for the opening of the coat of the HIV virus. बस आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि जो वायरस होता है उसके एक बाहर प्रोटीनेस कोट होती है, और प्रोटीनेस कोट क्या होती है, वो सबसे पहले जैसे वायरस आता है वो आपके एक होस्ट सेल के साथ बाइंड होता है, तो बाइंड होकर के वहाँ से उस कोट को रिलीव होना होता है, फिर वो कोट ओपन होगा और जेनेटिक मटेरियल जो है वो होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, उसके न्यूक्लियस में जाएगा और उसके डीएनए, जो उसका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसके ऊपर कंट्रोलिंग करेगा। ये इसका पार्ट होता है। तो जैसे वो बाइंड करता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव मटेरियल जो कहते हैं HIV वायरस है, वो एक स्पेशल एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेज एंजाइम। और ये इंटीग्रेज एंजाइम जो है वो क्या काम करता है, उस कोड को ओपन करता है, और कोड को ओपन करके उस जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एंटर करवाता है। मीन्स इसको कोड को ओपन करके इस जेनेटिक मटेरियल वायरस को जो है वो होस्ट सेल के साथ बाइंड करवाता है या उसको पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। तो ये जो इंटीग्रेज एंजाइम है इसको कौन इनहिबिट करता है, ये आपका रेल्टिग्रिवियर। सो रेल्टिग्रिवियर जो है वो एक एंटी रिट्रोवायरल है जिसका स्पेसिफिक क्या है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करता ही करता है, साथ में ये क्या करता है, जो इंटीग्रेज एंजाइम इनहिबिशन का भी ये काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज इंटीग्रेज इनहिबिशंस अबाउट द रेल्टिग्रिवियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या है, which one of the following is not an examples of G protein coupled receptor। देखिए G protein coupled receptor का एग्जाम्पल्स कौन सा नहीं है, नॉट कौन सा नहीं है। अब हम लोगों ने रिसेप्टर्स देखे हैं। रिसेप्टर क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि ड्रग उस पर बाइंड होती है और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देती है। और रिसेप्टर्स जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर्स भी होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में कौन से हैं और कौन से नहीं हैं ये हमें देखना है, स्पेशली कौन से नहीं हैं। मस्करेनिक, पहला ऑप्शन ए है मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ऑप्शन बी अल्फा एडनो रिसेप्टर, ऑप्शन सी इज द निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड ऑप्शन डी इज द बीटा एडनो रिसेप्टर्स। तो देखिए आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा, उसमें होगा कि मस्करेनिक रिसेप्टर है, अल्फ़ा बीटा जो आपका कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है, ये सॉरी अल्फ़ा बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, और जो आपका मस्करेनिक रिसेप्टर कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, ये तीन दोनों जो हैं कोलिनर्जिक और एडनर्जिक दोनों ही क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। बट कोलिनर्जिक में जो निकोटिनिक रिसेप्टर है, क्योंकि बस जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है मस्करेनिक रिसेप्टर कोलिनर्जिक में मस्करेनिक, और एक होता है निकोटिनिक कोलिनर्जिक में। तो ये कोलिनर्जिक के मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। तो इसमें ये निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स है जो कहाँ होता है, मसल्स एंड प्लेट्स में होता है, मसल्स एंड प्लेट्स में होता है। और ये मसल्स एंड प्लेट्स में क्या करता है, उसको वहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन सीक्रेट होता है और वो एक्शन प्रोड्यूस करता है, स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हम जानते हैं कि स्केलेटल मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और स्केलेटल मसल्स जो रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं वो हमने देखा है, वो क्या होता है, डी ट्यूबोग्रारिन। सो डी ट्यूबोग्रारिन जो है, डी ट्यूबोग्रारिन जो है वो ड्रग किसके साथ बाइंड होती है, ये निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर को बाइंड करती है और उसको ब्लॉक्ड करती है। सो दैट इज ओके, मीन्स दैट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, muscarinic receptors are G protein coupled receptor, and alpha beta both adrenergic receptors, both are the what are G protein coupled receptors. But the nicotinic or can say cholinergic receptor, that is not G protein coupled receptor, it is the ion gated channel receptor, and you can say blockage of nicotinic
cholinergic receptor, that is the D-tuberculin, that can block this receptor. So that we have discussed the additional point. Now we are discussing next about question number 18. So I hope you got the point and it is clear now. So we are discussing the next question number 18. 18 question is, which of the following statement is false for the artemisinin? Artemisinin is, what is artemisinin? Artemisinin, you know, it's a endoperoxide drug and it is used in treatment of the malaria, and it is obtained from the Artemisia annua. Artemisia annua. Artemisia annua, it is obtained from plants. Leaves of the Artemisia annua is responsible for the artemisinin. I know Professor Tutu has got the Nobel Prize for this discovery from the China, and in the physiology in 2016 Nobel Prize. So Professor Tutu. So that is additional information to you. So point is that, what is the point? That question is our question that we are discussing here. What is our question? Our question is, what is the false statement about the artemisinin? Option A is, it is a sesquiterpene lactone endoperoxide. Yes, it is correct, sesquiterpene, and it is the endoperoxide. Option B is, it is a drug of choice for prophylaxis malaria. Okay, drug of choice for the prophylaxis malaria. And option B is, so it's a drug of choice for the prophylaxis malaria. Prophylaxis malaria, it means, what is the prophylaxis malaria? Means drug of choice, means it's a prototype drug that can be used for the long-term treatment, or there's a first line drug for the malaria. So we know about the malaria. The first line drug for malaria is the chloroquine. So the artemisinin is not a prophylaxis drug for the malaria. It is used for treatment of malaria, but not for the prophylaxis of malaria. So the correct option, that is a false about the artemisinin. That I think the correct option would be for this question would be the B is the correct option, which is a prophylaxis malaria. It is not used, but it is as a prophylaxis malaria, chloroquine may be used. ओके हम थोड़ा सा और भी आगे के देख लेते हैं कि प्रोफाइलैक्सिस मलेरिया में तो नहीं यूज होता है, बट आगे क्या राइट है, इट डज नॉट क्योर द रिलैप्स मलेरिया, बिल्कुल ये भी ठीक है, ये रिलैप्स मलेरिया में जो नहीं करता है, एंड इट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सेरिब्रल फाल्सिफरम मलेरिया, बिल्कुल सही है, सेरिब्रल फाल्सिफरम मलेरिया में यूज होता है. तो क्या सही नहीं है? ऑप्शन बी इसका सही नहीं है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोफाइलैक्सिस मलेरिया के लिए, जो ही हमसे पूछा है व्हाट इज द फॉल्स अबाउट, जैसे आर्टेमिसिनिन, जो कि हमने देखा. करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? दैट इज करेक्ट ऑप्शन वुड बी द बी फॉर दिस. ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 18 क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. इट इज़ क्लियर टू ऑल. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द 19 क्वेश्चन? Which of the following antibiotic produce concentration dependent bactericidal actions and also possess post antibiotic effect? ओके, तो हमारा इसका क्या मतलब है कि ऐसे एंटीबायोटिक बताना है जो कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एंटीबैक्टीरियल एक्शन शो करता है और पोस्ट एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट शो करता है. पोस्ट एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट मीन्स एज ए साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं पोस्ट एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट. तो हमने ये चीज़ ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए है आपका सेप्टाजिडिम. सेप्टाजिडिम कौन सी कैटेगरी ड्रग है? सिफ्लोस्पोरिन. ऑप्शन बी है आपका एजिथ्रोमाइसिन. एजिथ्रोमाइसिन इस कैटेगरी ड्रग है, दैट इज मैक्रोल एंटीबायोटिक. एमिकासिन ये क्या है? कैसे पोलीन्स एंटीबायोटिक, सॉरी दैट इज एमिनो एल्काइल एंटीबायोटिक्स. तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, सॉरी. एंड ऑप्शन डी इज पाइप्रेंसिलिन. पाइप्रेंसिलिन इज
पेनिसिलिन डेरिवेटिव, पेनिसिलिन डेरिवेटिव पाइपरिंसिलिन। और हमने फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, हमने देखा है कि पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट जो है वो किसका होता है, पेनिसिलिन और पेनिसिलिन की डेरिवेटिव होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पाइपरिंसिलिन। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट ही पेनिसिलिन एक्शन अपना देता है, अपना रोल प्ले करता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है हमारा, व्हाट इज कीमोटैक्सिस, व्हाट इज द कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या है, कीमोटैक्सिस क्या है। पहला ऑप्शन है टॉक्सिसिटी ऑफ द केमिकल्स, किसी भी केमिकल्स की टॉक्सिसिटी को कीमोटैक्सिस बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ऑप्शन बी है हमारा टॉक्सोनोमी ऑफ केमिकल्स, बिल्कुल ये भी गलत है। तीसरा है टॉक्सोनोमी कोई केमिकल्स का होता ही नहीं है। तीसरी ऑप्शन सी है हमारा इनहिबिशंस ऑफ inflammations, so no anything related with the inflammations, okay. And then third, the option D is the moment of leukocyte in inflammations. Yes, that is the point. So leukocyte, moments of leukocyte in the chemotaxis, the correct option would be the D, moment of leukocyte that is coming to the as a chemotaxis. आपने ये फार्माकोलॉजी में ये देखा होगा, कीमोटैक्सिस एक पर्टिकुलरली इन्फ्लामेशंस जो एक फिनोमेना होता है जिसमें इन्फ्लामेशन होता है, तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो निकलती हैं और एक तरीके से वहाँ पे इन्फ्लामेशंस काज करती हैं, जिसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। नेक्स्ट ऑप्शन दे लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिक आर्थराइटिस इज नॉट ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। इसका क्या मतलब है कि हमें जो नीचे ड्रग दी गई है उनमें से देखना है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग नहीं ली जाती हैं और कौन सी ड्रग जो है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को मॉडिफाई नहीं करती है, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को मॉडिफाई नहीं करती है। देखिए ड्रग ऑप्शन ए है एनाकी, ऑप्शन ड्रग है हमारा दैट इज एनाकीरा एक ब्रांड नेम है जो कि एक्चुअली रूमेटिक आर्थराइटिस में ड्रग यूज करती है एनाकीरा। बट ये हमारा ऑप्शन आंसर क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर कौन सा है, वो ये एनाकीर नहीं है। देन ऑप्शन बी इज लीफ्लुनामाइड, ये भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होती है लेकिन ये मॉडिफायर नहीं है। ऑप्शन सी इज एटेनस रिसेप्ट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। एटेनस रिसेप्ट जो है ये एक मॉडिफायर है जो कि इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होता है। एंड इनफ्लिक्सिम, ये भी जो एंटीबायोटिक है इसका भी कोई मॉडिफिकेशन में रोल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन HIV। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बताना है जो कि एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर सके। तो हम जानते हैं सारी HIV ड्रग जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होती हैं, बट हमें ये पूछ कर रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। लिमोडिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नेविरापिन, ऑप्शन सी एबाकावियर एंड ऑप्शन डी टिनोफ्लावियर। तो आपका देखें इसमें सिर्फ एक ही जो HIV इनहिबिटर इनहिबिटर है वो आपका ऑप्शन है नेविरापिन, जो क्या फार्माकोलॉजिकल है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, रेजिस्टेंस इनहिबिटर है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, नेविरापिन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। इसमें से कौन सा जो है एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर है। ऑप्शन ए इज पेनिसिलिक एसिड, हम जानते हैं ये बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर नहीं होता है, इससे तो पेनिसिलिक एसिड का जो मेटाबोलाइट्स है, पेनिसिलिन का मेटाबोलाइट्स है। ऑप्शन बी इज एम्बोनिक एसिड, ये भी कुछ नहीं होता है। देन ऑप्शन सी इज सिफलोस्पोरिक एसिड, ये भी हम जानते हैं सिफलोस्पोरिन का ही
मेटाबोलाइट है, एसिड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? डी, क्लोरिनिक एसिड। हम जानते हैं साल्वेक्टम और क्लोरिनिक एसिड ही बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, साल्वेक्टम। दूसरा कौन सा है? वेक्टम, साल्वेक्टम और क्लोरिनिक एसिड, ये दो ही जो क्या हैं आपके बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। सो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट ऑप्शन इज द डी फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 24? न्यूरल ट्यूब defects may occur by which one of the following anti-seizure drug? देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होता है? ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ये एक्चुअली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो क्या होता है, जब प्लेसेंटा, जब एक तरह से प्रेग्नेंट लेडी में प्लेसेंटा के केस में क्या होता है, ब्रेन के अंदर ये डिफेक्ट्स हो जाता है। हम जानते हैं कि वहाँ पे एक तरह से ब्रेन में एक सेप्टम होता है और वहाँ पर जो एक तरह से एक ट्यूब्यूल लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाती है, और वो जो डिफेक्ट जो डेवलप होता है वो कौन सी टाइप की एंटी सीजर ड्रग से होता है, दैट वी हैव टू सी। ऑप्शन ए इज द इथोसेक्सुमाइड, ऑप्शन बी इज द गिबाबेट्रिन, ऑप्शन सी इज द वेलप्रोइक एसिड एंड ऑप्शन डी इज द प्रीमिडोन। तो बताइए इसमें कौन सा हो सकता है राइट आंसर? देखिए इथोसेक्सुमाइड्स, वीगाबेट्रिन आप जानते हैं कि ये बेंजोडाइजेपिन, नॉन बेंजोडाइजेपिन ही होती है लेकिन बेंजोडाइजेट एक्शन करती है। प्रीमिडोन क्या करते हैं? फेनोटाइज जो आपका बारबिचुरेट्स का एक फिनोबारबिटोन बनाती है, इसका प्रिकसर होता है। इथोसेक्सिमाइड जो है सक्सिमाइड डेरिवेटिव है, उसका डेरिवेटिव है। वेलप्रोइक एसिड जो है वो क्या है? आपका एल्काइलेटिंग जैसे प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है या एल्काइलेट एसिड डेरिवेटिव है। तो ये सभी जो हैं एंटीसीजर ड्रग हैं, बट न्यूरल इफेक्ट जो है, न्यूरल इफेक्ट किससे होगा? सिर्फ वेलप्रोइक एसिड से होगा। ये क्या करेक्ट ऑप्शन है? व्हाट इज़ द न्यूरल इफेक्ट कौन देगा? आपकी एंटीसीजर ड्रग जो कि वेलप्रोइक एसिड है, इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर वेलप्रोइक एसिड सीजर में नहीं लेते हैं। सीजर मीन्स आप जानते हैं क्या होता है सीजर का मतलब? आपका एपिलेप्सी, जिसको बोलते हैं जनरली मिर्गी हिंदी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन फार्मा इंडस्ट्री फॉर ड्राइंग ऑफ द सॉफ्ट सेल कैप्सूल्स? क्या मतलब है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फार्मा इंडस्ट्री में सॉफ्ट सेल कैप्सूल्स को ड्राई करने के लिए कौन सा मेथड या कौन सा जो है इंडस्ट्री मेथड यूज करते हैं। ऑप्शन ए है ट्रंक ड्रायर, ऑप्शन बी है फ्लूइड बेड ड्रायर, ऑप्शन सी है वैक्यूम ड्रायर, ऑप्शन डी है माइक्रोवेव ड्रायर। तो हम सॉफ्ट सेल कैप्सूल्स क्या होता है? सॉफ्ट कैप्सूल जो आप जानते हैं तो वो विटामिन्स के आपने कैप्सूल देखे होंगे, छोटे छोटे कैप्सूल आते हैं गोल गोल, सॉफ्ट कैप्सूल्स। सो ये सॉफ्ट कैप्सूल जो है फार्मा इंडस्ट्री में ड्राई कैसे करते हैं? अगर इसको सॉफ्ट कैप्सूल है, इसमें क्या हुआ, विटामिन जो है थर्मोलेबल ड्रग होती है, थर्मोलेबल सब्सटेंस होता है, इसीलिए इसको जो है हार्ड कैप्सूल बनाकर इसको सॉफ्ट कैप्सूल बनाया जाता है। और सॉफ्ट कैप्सूल बनाने के लिए इसको ड्राई करने के लिए भी हमें ऐसा मेथड यूज़ करना पड़ेगा जिसमें हीट ना हो। हम जानते हैं ट्रंक ड्रायर हो, माइक्रोवेव ड्रायर हो या फ्लूइड बेड ड्रायर हो, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। एक ही ऑप्शन है वैक्यूम ड्रायर, जिसके अंदर हीट नहीं होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी, जो सॉफ्ट सेल कैप्सूल में हीट नहीं जनरेट होगी, वैक्यूम ड्रायर यूज करते हैं किसमें? इसको ड्राई करने के लिए। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट वी आर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन इज इफ C is the concentration of the dissolved drug and CS is the saturation concentrations, in which case the sink conditions are said to be maintained. Like, what is the meaning of this question? Question is tell us about that is the dissolution concentration is C and the saturated concentration CS. So what is the sink conditions? Sink conditions क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये जानना सोचते हैं, नेक्स्ट उसको ऑप्शन देखते हैं और सिंक कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। सिंक कंडीशंस, व्हाट इज द सिंक कंडीशंस? व्हाट इज द सिंक कंडीशंस? सिंक कंडीशंस का मीनिंग क्या है आपका? इम्पोर्टेंटली आप
हम ये समझ सकते हैं सिंक कंडीशंस ये इमरजेंसी क्लास में ये इमरजेंसी। अरे ये बच्चों को फॉर्म नहीं सकते तो मैं पहले बार है ना, टाइम हो गई, ये घंटे 10 मिनट दे दिया फिर बंद कर दो। 5 मिनट्स। ऑप्शन सो ये हमारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे कि सिंक कंडीशंस क्या होती है। सिंक कंडीशंस में पोजीशन क्या है कि सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आप लोगों को डिस्टर्बेंस फील हुआ होगा। ओके, आई एम वेरी रियली सॉरी, इट्स ओके। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्कशन था वो क्या था कि हम जो ड्रग कंसंट्रेशंस है सी और सी एस, जो आपका सेचुरेटेड कंसंट्रेशंस है, तो सिंक कंडीशंस में क्या कंडीशन है कि हाँ, जब डिजोल्यूशन अब करते हैं उसके सिंक कंडीशन बोलते हैं कि जब ड्रग कंसंट्रेशंस उसके इक्वल हो सके वो एक तरीके से ये। तो इसमें सिंक कंडीशन क्या होगी, अगर जो सेचुरेटेड कंसंट्रेशन है वो अगर कंसंट्रेशन सेचुरेटेड कंसंट्रेशन 10% से कम होती है तो वो सिंक कंडीशन होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेशंस फॉर यूज ऑफ एसी इनिबिटर एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई दैट। इसका मतलब क्या है कि एसी इनिबिटर्स हैं, एक है एक्सेप्ट वन, जो कि एक कह सकते हैं हम इसमें वो हमारा इंडिकेशंस दे, मीन्स जो क्या मतलब किस में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं एसी इनिबिटर्स को, उसको देखना है कि किस में नहीं कर सकते। ऑप्शन ए इज हाइपरटेंशन, बिल्कुल करते हैं। ऑप्शन डी इज माइक्रोएंडिफिकेशन, इसमें भी करते हैं। एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, इसमें भी करते हैं। किस में नहीं करते हैं? ऑप्शन डी फियोक्रोमासाइटोमा। फियोक्रोमासाइटोमा क्या है? ये एक कैंसर का रूप है, एक कैंसर का ड्रग है जो कि किसमें है? एड्रिनल ग्लैंड में होता है फियोक्रोमासाइटोमा। तो वहाँ पे एसी इनिबिटर्स का कोई रोल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या है? डी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच वाटर इज यूज फॉर हैंड वॉशिंग इन ए चेंज रूम ऑफ द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? विच वाटर इज यूज फॉर हैंडलिंग। देखिए इसका मतलब क्या है कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा वाटर जो है हाथ वॉश हैंड वॉश के लिए कौन सा जो है चेंजिंग रूम में वाटर यूज करते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पोर्टेबल वाटर है। ऑप्शन बी इज प्यूरिफाइड वाटर, सो इज डिसइंफेक्टेड वाटर। ऑप्शन डी इज सोप वाटर। तो प्यूरिफाइड सोप वाटर डिस्ट्रीब्यूट कोई नहीं करते हैं। पोर्टेबल वाटर क्या है? आपका ड्रिंकिंग वाटर है, उसी को बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर ही यूज करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर देखिए प्यूरिफाइड वाटर या डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं करते हैं? मिनरल्स नहीं रहते हैं कोई भी चीज़। और ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको पोर्टेबल वाटर करते हैं, प्योर ड्रिंकिंग वाटर ही यूज़ करते हैं जिसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफोर्ड मैक्रोमोलिकुलर इंक्लूजन कंपाउंड? डज नॉट अफोर्ड, कौन सा जो है जो मैक्रोमोलिकुलर इंक्लूजन कंपाउंड अफोर्ड नहीं कर सकता है? मीन्स मैक्रोमोलिकुलर नहीं है, ये देखना है बड़ा लार्ज मोलिक्यूल कौन सा नहीं है। जियोलाइट बिल्कुल बहुत बड़ा होता है, डेक्सट्रिन भी बड़ा होता है, साइक्लोडेक्सट्रिन भी बड़ा होता है। लेकिन सिलिका जेल हम जानते हैं, सिलिका जेल SiO2 जो सिलिका जेल होती है SiO2 ये बहुत बड़ा मोलिक्यूल नहीं है। जियोलाइट भी बहुत बड़ा मोलिक्यूल होता है। मैक्रोमोलिकुलर इंक्लूजन कौन सा नहीं है? दैट इज सिलिका जेल। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, विच condition does not apply as per the law Indian law while conducting single dose bioavailability study of a immediate release product? तो यहाँ पे क्या है कि इमीडिएट रिलीज प्रोडक्ट है, उसकी सिंगल डोज बायोबिलिटी के लिए कौन सा लॉ जो है एज पर द इंडियन लॉ क्या कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस फार्मास्यूटिकल में कौन सा नहीं होगा, कौन सा अप्लाई नहीं है?
Option A is the sample period should be at least 3 of the half day, जैसे हाफ लाइफ, तो ये सही है, हाफ लाइफ का एटलीस्ट 3 पार्ट का हाफ लाइफ का होना चाहिए सैम्पलिंग। दूसरा है सैम्पलिंग शुड रिप्रेजेंट द प्री एक्सपोजर एंड पीक एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर फेज, बिल्कुल तीनों फेज होनी चाहिए, प्री पोस्ट एंड पीक एंड पोस्ट एक्सपोजर तीनों होनी चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट 4 सैम्पलिंग पॉइंट ड्यूरिंग द इल्यूमिनेशन। नो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 सैम्पलिंग पॉइंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये नोट पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या है आपका? नो। दूसरा डी भी देख लेते हैं, सैम्पलिंग शुड बी कंटेन टिल मेजर AUC इज एटलीस्ट इक्वल टू द 80% ऑफ AUC। बिल्कुल ये सही है कि 80% से AUC से जो है वो परसेंट AUC से कम जो है कंटिन्यू होना चाहिए, इतना कम से कम। तो ये हमारा इसमें इस क्वेश्चन को में क्या मीनिंग है, इस क्वेश्चन को समझिए। 30 क्वेश्चन को क्या मीनिंग है कि बायोबिलिटी जो सिंगल डोज बायोबिलिटी है इमीडिएट ड्रग रिलीज में क्या क्या चीज़ जो कंपलसरी नहीं है। 4 सैम्पलिंग वाला कंपलसरी नहीं है, 3 हाफ लाइफ से 3 गुना होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सैम्पलिंग जो है तीनों कौन सी होनी चाहिए? तीन सैम्पलिंग, प्री पीक और पोस्ट, और जो AUC है उसका 80% ये होना चाहिए सैम्पलिंग। तो ये जो चीज़ है वो तीनों सही है, लेकिन क्या सही नहीं है? 4 सैम्पलिंग वाला बिल्कुल सही नहीं है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। क्वेश्चन जो GPAT 2011 का। तो आई थिंक यू ऑल गेट all the questions very elaborative way. I have explained very simple way and try to explain the whole you can say options as well and question as well. So अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, क्योंकि मेरा टारगेट है स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा नॉलेज फार्मेसी का मिल सके, GPAT क्वालिफाई कर सके, कंपटीशन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके, और इस चीज़ से जो है अच्छा एक माहौल जनरेट हो, एक अच्छे आप लोग नॉलेजफुल एक फार्मासिस्ट बन सकें और लाइफ में और अच्छा आगे कर सकें। सो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको अप्रिशिएट करें, और अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे इसको आस्क कर सकते हैं। सो दैट इज़ माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार। सो टुडे इज़ all for today. Thank you very much. We will meet in next video. Thank you.